Okay. So ओम्स लॉ से करना था. So according to ओम्स लॉ, हम लोगों ने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत स्टार्ट भी किया था. तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. तो जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, उस कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या हम लोगों ने सोर्स कनेक्ट कर रखा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स कनेक्ट कर रखा है, उस पर डिपेंड करता है. सो the current which is flowing in the conductor is directly proportional to potential difference, which can also be written as कि the voltage potential difference is directly proportional to the current flowing through the conductor. अब इसको अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी साइन से रिप्लेस कर देंगे तो V इज इक्वल टू I into some constant R, and that R is basically the resistance of the conductor. So ये R जो है किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है. तो ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. तो जब हम कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब अगर आप वोल्टेज को डबल करोगे तो करंट डबल हो जाएगा, वोल्टेज को हाफ करोगे तो करंट हाफ हो जाएगा. ठीक है. सो according to Ohm's law, the current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference applied across its end, provided that the physical conditions and the temperature of the conductor remains constant. So physical condition and temperature of the conductor both remains constant. Okay. So if the potential difference across the ends of a conductor is doubled, the current flowing into it gets doubled. तो वही जो हम लिख रहे थे कि since I is proportional to V will also be proportional to I. So when we say that we are doubling the potential difference, then in that case, current will also get doubled. And similarly, if you are halving the potential difference, the current will also get halved. So if a current I flows in a conductor, then the potential difference across its end is V. Then according to Ohm's law, I is proportional to V, or V by I is constant. That constant, let's say if we write it as R, put the constant equal to R, the resistance of the conductor. In that case, the potential difference V is equal to I into R. Unit of R निकालना होगा. Unit of R क्या है? Unit of volt by unit of current है. ठीक है. So unit of volt हमारा वोल्ट पर कूलम हो गया, और इसको ओम नाम से दिया गया, और उसका जो सिंबल है वो ओमेगा का सिंबल होता है. ठीक है. ये हाफ राउंड और ऐसे. So the SI unit of potential difference is volt. So SI unit is volt and that of current is ampere. So SI unit of potential difference is volt and that of current is ampere. So the unit of resistance is volt per ampere. ठीक है. तो ये जो यूनिट है, this is volt per ampere, which is named after the scientist Ohm. It is denoted by the symbol omega. ठीक है. Now high resistance are measured in units called kilo ohm and mega ohm. तो जो बड़े units हैं ohm के, they are kilo ohm and mega ohm, and 1 kilo ohm is 10 to the power 3 ohm and 1 mega ohm is 10 to the power 6 ohm. Capacitance, conductance अब हम लोग देखेंगे. Sorry. The reciprocal of resistance is conductance. So जो resistance हम लोगों ने R देखा, conductance को G से represent करते हैं. It is denoted by letter G. और कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस. सो a conductor whose resistance is high will have lower conductance, and the conductor whose resistance is low will have higher conductance because they are inversely proportional. Unit is per ohm. So 1 by resistance means ohm raised to the power -1, और इसको हम लोग सीमेंस से भी रिप्रेजेंट करते हैं. Now IV ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे, ठीक है, देयर आर टू काइंड ऑफ ग्राफ्स व्हिच वी विल बी स्टडीइंग. एक IV ग्राफ और एक VI ग्राफ.
तो IV ग्राफ जो पहले हम लिखते हैं उसको हम लोग y एक्सिस पे लेते हैं, तो I को y एक्सिस पे लेंगे और V वोल्टेज को हम लोग x एक्सिस पे लेंगे। ये IV ग्राफ बना रहे हैं। जो IV ग्राफ हम लोग बनाएंगे, अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर ये कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो इसका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन। So for a metallic conductor, the ratio V by I is constant for all values of V and I. तो V by I का रेशियो कांस्टेंट है, मतलब I by V भी कांस्टेंट होगा। If a graph is plotted for current I against potential V, we get a straight line passing through the origin. The slope of the IV graph, तो जब हम कहते हैं slope of IV graph, slope of IV graph is I by V. So slope of IV graph is equal to I upon V. तो I upon V करेंगे, so this is 1 upon R. 1 upon R को हम लोग G से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो that is conductance. So slope of IV graph represents conductance. तो अगर दो कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, 3 मान लो, ये करंट I है, ये वोल्टेज V है, और ये कंडक्टर 1, कंडक्टर 2 और कंडक्टर 3। तो अगर हम लोग को इनका रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है, तो तुम देखोगे कि जिसका स्लोप ज्यादा है उसका कंडक्टेंस ज्यादा है। I by V का स्लोप इज कंडक्टेंस, सो स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज कंडक्टेंस, दैट मीन जिसका स्लोप ज्यादा उसका कंडक्टेंस ज्यादा, कंडक्टेंस ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम, ठीक है। तो इसमें बिकॉज कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस हम लोग इसका कम मानेंगे, राइट। तो रेजिस्टेंस कम मानेंगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ 3 is greater than resistance of 2 is greater than resistance of the first conductor. Is it clear? Yes, sir. और कंडक्टेंस का रिलेशन देखेंगे तो कंडक्टेंस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन कंडक्टेंस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन कंडक्टेंस ऑफ 3। ठीक है बच्चों। नाउ limitation of Ohm's law. So Ohm's law is obeyed only when the टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा। सो ओम्स लॉ is obeyed only when the temperature of conductor remains constant. VI ग्राफ वोल्टेज करंट का जो ग्राफ है, VI ग्राफ इसको हम लोग बोल रहे हैं। सो वोल्टेज towards y axis and current towards x axis. So a graph is plotted for V against I by taking V on y axis and I on x axis, which is found to be a straight line as shown in the figure. This verifies the Ohm's law. So VI graph ये हमारा ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। नाउ स्लोप ऑफ VI ग्राफ, द स्लोप ऑफ, ठीक है, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन VI ग्राफ इज डेल्टा V बाय डेल्टा I। तो यहाँ पे देखो VI ग्राफ में वोल्टेज x एक्सिस पे लेंगे, करंट y एक्सिस पे लेंगे, और यहाँ पे जो स्लोप होगा, स्लोप इज बेसिकली डेल्टा V बाय डेल्टा I। डेल्टा V बाय डेल्टा I मतलब रेजिस्टेंस R हो गया। सो विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VI ग्राफ। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन VI ग्राफ दैट इज डेल्टा V बाय डेल्टा I गिव्स द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर। सो रेजिस्टेंस R इज डेल्टा V बाय डेल्टा I और स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ। नाउ ऑब्वियसली greater is the slope of VI graph, greater is the resistance of the conductor. VI ग्राफ में उल्टा होगा, यहाँ पे स्लोप बिकॉज रेजिस्टेंस को मेजर करके बता रहा है। तो अगर हम लोग ये VI ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, सो अगर VI ग्राफ बनाते हैं, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। स्लोप देखो R1 का R2 से बड़ा है और R2 का R3 से बड़ा है।
तो उस केस में जो हम लोग कहेंगे कि R1 इज रेजिस्टेंस R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, ठीक है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now ohmic resistors and non-ohmic resistors. So ohmic resistors क्या है? These are those resistors in which Ohm's law is valid, या Ohm's law is satisfied by those conductors. The conductors which obey the Ohm's law are called ohmic resistors. तो ऐसे resistors जिसमें जो हम लोग करंट और वोल्टेज कुछ अप्लाई करेंगे, उसके अक्रॉस जो हम लोग करंट मेजर करेंगे, ठीक है, तो करंट मेजर्ड, right, and the voltage potential difference measured across a conductor, उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। और ऐसे कंडक्टर्स जो कि अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो अलग अलग करंट आएगा, उसका जो कांस्टेंट है V बाय I, जो रिलेशन है वो अगर सेम आता है, सो कंडक्टर्स विच ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक रेजिस्टर्स। Now, or linear resistances. For such resistors, a graph plotted for the potential difference V against current I is a straight line passing through the origin. ठीक है? So V by I is the resistance R. ठीक है? Non-ohmic resistors देखेंगे. The conductors which not obey the Ohm's law are called non-ohmic resistors. Okay? So ऐसे कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, उनको नॉन ओमिक रेजिस्टर्स कहते हैं, राइट। सो दोज कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, ओके। और नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेस, तो V बाई आई ग्राफ अगर इनका बनाएंगे ना नॉन ओमिक रेजिस्टर्स का, सो दैट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। और ओमिक रेजिस्टर्स का अगर V बाई आई ग्राफ बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे जो वी आई ग्राफ बनाएंगे ओमिक रेजिस्टर्स का, तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अगर ये नॉन ओमिक रेजिस्टर है तो उस केस में जो वी आई ग्राफ बनाएंगे, सो दैट विल बी अ कर्व बेसिकली। सो ये नॉन ओमिक रेजिस्टर का वी आई ग्राफ है और ये ओमिक रेजिस्टर का वी आई ग्राफ है। So non-ohmic resistors, the conductors which do not obey the Ohm's law are called non-ohmic resistors, or non-linear resistances. So for these conductors, the graph plotted for the potential difference V against current I is not a straight line, but it is a curve. तो ये जो ग्राफ है, it is a curve. VI ग्राफ जो हम लोग बनाते हैं, it is a curve. For ohmic resistors, it is necessary that the straight line on VI graph passes through the origin, but for a non-ohmic resistor, it is not necessary that the curve on the VI graph must pass through the origin. ठीक है, तो ओमिक रेजिस्टर में इट इज नेसेसरी दैट इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, नॉन ओमिक रेजिस्टर में इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट पासेस थ्रू द ओरिजिन. The resistance of a non-ohmic conductor, the ratio V by I, is different for different values of V or I. ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए V by I का वैल्यू अलग अलग होगा। यहाँ पे देखो V by I मतलब इस टेंजेंट का स्लोप हो गया, यहाँ पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट कुछ और होगा, उसका स्लोप कुछ और होगा। तो हर पॉइंट पे बेसिकली V बाय आई का वैल्यू चेंज करेगा। और ये जो नॉन ओमिक रेजिस्टर है वहां पे V बाय आई जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज नॉट कांस्टेंट. सो द रेजिस्टेंस ऑफ ए नॉन ओमिक कंडक्टर, that is ratio V by I, is different for different values of V or I. The resistance at a particular value of V or I is obtained by finding. So this is obtained by finding the slope of the tangent drawn at the
corresponding point on the VI graph. The value delta V by delta I is called dynamic resistance since its value is different for different values of V और I. तो यही हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम लोग को किसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालना है तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग, ठीक है, सो जिस पॉइंट पे भी हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट बनाते हैं. उस टेंजेंट का जो स्लोप है, ठीक है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल गिव अस द रेजिस्टेंस एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट. तो और बिकॉज हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसीलिए ये जो नॉन ओमिक रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं वो वो जो है कांस्टेंट नहीं है, वो डायनेमिक है, चेंज कर रहा है, तो उसको डायनेमिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं. क्लियर है बच्चों? Now distance between the ohmic and non-ohmic resistors, ठीक है, तो ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टर का अगर डिफरेंस देखें, पहला ओमिक रेजिस्टर क्या है, इट ओबेज द ओम्स लॉ, दैट इज V by I इज कांस्टेंट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ V और I. ठीक है, तो जो V by I है ये कांस्टेंट है. ओमिक रेजिस्टर्स obeys the Ohm's law and for every value of voltage and current the V by I ratio is always constant. Non-ohmic resistor it does not obey the Ohm's law because ये obey नहीं कर रहा Ohm's law. V by I is not same for all values of V और I. वोल्टेज और करंट जो है सेम नहीं होगा सारे वैल्यूज ऑफ V और I के. दूसरा पॉइंट, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है डिस्टिंक्शन. Second point, the graph for potential difference V versus current I is a straight line passing through the origin. ठीक है, so graph for potential difference V versus current I. So VI graph. Okay. So graph for potential difference V versus I is a straight line. VI graph यहाँ पे straight line है, ठीक है. और इस केस में देखते हैं यहाँ पे द ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस V वर्सेस करंट I इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. नॉन ओमिक रेजिस्टर में इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट इज अ कर्व विच में नॉट पास थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, तो ये कर्व है, कोई जरूरी नहीं है ओरिजिन से पास करेगा. और यहाँ पे जो VI ग्राफ बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये लेकिन ओरिजिन से पास करेगा. तीसरा, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज सेम एट ऑल वैल्यूज ऑफ V और I एट अ गिवन टेम्परेचर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज सेम. तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ अगर सेम है हर पॉइंट पे, इसका मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है. और जब हम कह रहे हैं स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज डिफरेंट एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V और I, इसका मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है. ठीक है. नाउ एग्जांपल्स ऑफ ohmic resistor, all metallic conductors such as silver, iron, copper, nichrome, electrolyte with suitable electrodes etc. These are examples of ohmic resistors. Non-ohmic resistors का देखेंगे, Johnson diode, LED transistor, filament of a bulb etc. These are examples of non-ohmic resistors. ठीक है. Now factors affecting the resistance of a conductor. So the resistance of a conductor depends on the following four factors. First is material of conductor, second is length of conductor, third is thickness of conductor and fourth is temperature of conductor. ठीक है. So ये जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला मटेरियल ऑफ कंडक्टर. सो डिपेंडेंस ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर. Different material have different concentration of free electrons and therefore the resistance of conductor depends on its material. Because हर conductor में कितने free electrons हैं, density of free electrons, the concentration of free electron. Okay, so this depends on different materials. So every material will have different amount of concentration of free electrons, and therefore
द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल. रेजिस्टेंस क्या है, उसके मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है. The substance which have a large concentration of electrons offer less resistance. They are called good conductors of electricity. But the substances such as rubber, glass, wood, etc. have negligible concentration of free electrons. They offer very high resistance, so they are called insulators or of electricity. So basically जो जिसमें ज़्यादा concentration of electrons and free electrons, they are good conductors. They offer less resistance. Or substances which have negligible concentration of free electrons, they are poor conductors of electricity. They have high resistance, and also they are also known as insulators of electricity. Now dependence on the length of conductor. तो मटेरियल ऑफ कंडक्टर को हमने देख लिया. अब सेकंड जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे आते हैं. सो इन अ लॉन्ग कंडक्टर the number of collisions of free electrons with a positive ion be more as compared to a shorter one. तो मान लो देखो लेंथ ऑफ कंडक्टर, मान लो एक कंडक्टर का लेंथ इतना सा है और दूसरे का लेंथ इतना ज्यादा है. अब यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा उसको इस एंड से इस एंड पे आना है. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कि किसी चीज से वो टकराए ना, नंबर ऑफ कोलिजन जितना इस केस में होगा, और जब यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा नंबर ऑफ कोलिजन जो इस केस में होगा वो ज्यादा होगा. सो ये मान लो कंडक्टर बी है, कंडक्टर ए है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इन बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कोलिजन्स इन ए. बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन्स बी में ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए. और हम लोगों ने ये देखा कि लेंथ को डबल करते हैं तो कोलिजन्स डबल हो जाता है, और इसी तरीके से तो इससे हम लोगों ने देखा कि लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. लॉन्गर कंडक्टर ऑफर्स मोर रेजिस्टेंसेस. तो ये जो लॉन्गर कंडक्टर है इट ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस. In fact, the resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. Clear है बच्चों? सर एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो. सर आपने बोला कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के लिए, और सर मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स होते हैं पर उनकी तो वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो उससे क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या कि जो फ्रीली मूव कर सके, वो आराम से उस इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से हटा सकता है. अच्छा. अगर नॉन मेटल होगा उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हटा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा ना मूव करने के लिए. जब वैलेंस शेल के साथ जुड़ा हुआ है एटम के साथ तो मूव कैसे करेगा? यस सर. Now dependence on thickness of conductor. So जैसे थिक कंडक्टर है ना, कोई एक कंडक्टर है विच इज थिकर, है ना, एज कंपेयर टू अ थिनर कंडक्टर. सो जो थिकर कंडक्टर है उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन बहुत चांस है कि एक एंड से दूसरे एंड मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स के साथ पहुंच जाए. बट जो थिनर कंडक्टर है वहां पे तो कोलिजन एवर्ट हो ही नहीं सकता है, तो वहां पे कोलिजन ज्यादा होंगे बिकॉज रास्ता उसको ज्यादा नहीं मिल रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाने की, स्पेस ज्यादा नहीं है. So in a thick conductor, electrons get a large area of cross section to flow as compared to a thin conductor. So large area of cross section as in कि उसको मूव करने के लिए ज्यादा एरिया मूव कर मिल रहा है एक एंड से दूसरे एंड जाने में. ठीक है. और अगर हम लोग इसको देखते हैं ये थिनर कंडक्टर को, तो उसके पास कम एरिया है उसको मूव करने के लिए. तो बिकॉज कम एरिया है तो उसके चांसेस जो टकराने के होते हैं कोलिजन्स के, वो इंक्रीज कर जाता है. The radius of wire of same length is doubled. If the radius is doubled, the resistance becomes 1/4. Okay, so that means it depends on the area of cross section. ठीक है. So radius को अगर हम लोगों ने डबल किया तो रेजिस्टेंस जो है 1/4 हो जाता है. ठीक है. Now dependence on the temperature of conductor. So experimentally हमने देखा कि with the increase of temperature the random motion of, तो रीजन क्या है बेसिकली क्यों ऐसा होता है कि टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो जो रैंडम मोशन है
राइट। एक इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन होगा वो रैंडम मोशन इंक्रीज कर जाएगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर से, है ना। सो काइनेटिक थ्योरी ये कहता है कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर मतलब एनर्जी दोगे उतना ज्यादा ये वाइब्रेशंस होंगे इलेक्ट्रॉन के, रैंडम मोशन होगा। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो रैंडम मोशन उसका इंक्रीज कर जाता है। रैंडम मोशन इंक्रीज करता है तो जो उसका उसका जो कोलिजन का चांस है वो भी इंक्रीज कर जाता है। भाई वाइब्रेट ज्यादा करेगा तो कोलिजन भी तो ज्यादा करेगा, और कोलिजन ज्यादा होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, सॉरी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाए। So hence the resistance of conductor increases on increase in its temperature. VI graph for a conductor of at two temperature, दो टेम्परेचर पे सेम कंडक्टर है, उसका वोल्टेज करंट ग्राफ बनाएंगे तो वोल्टेज करंट ग्राफ उनका मान लो ये इस तरीके से, तो ए कंडक्टर का ये हो गया और बी का ये हो गया। मतलब ए वाले का जो रेजिस्टेंस है, बिकॉज टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, राइट, और T1 T2 है और VI ग्राफ बना दे तो स्लोप इसका A का ज्यादा है, तो यहाँ पे R1 will be RA will be greater than RB और R1 will be greater than R2. So straight line A is much more steeper than the line B because the resistance of the conductor is more at high temperature T1 than at lower temperature T2. Now specific resistance or resistivity. So experimentally it has been observed that the resistance of a wire is directly proportional to इसको a wire कर लेना. So the resistance of a wire is directly proportional to its length, that is R is proportional to L. ठीक है. The resistance of the wire varies inversely as the area of cross section of the wire, or R is proportional to 1 by A, or R is proportional to 1 by pi r square, where R is the radius of the circle. Combining the above equation 1 and 2, here rho is the constant which is of characteristics of the material of wire and is called the specific resistance of the material of the wire. It is different for different materials. Now specific resistance रो का अगर हम लोग वैल्यू देखते हैं, देखो जो रेजिस्टेंस है हमारा R इज इक्वल टू रो एल बाय ए है, उसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, सो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा. सो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन L. So specific resistance of a material is the resistance of a wire of that material of unit length and area of cross section. So unit of specific resistance if we see, so यहाँ पे देखो relation rho is equal to, so basically R is equal to rho L by A है, तो अब यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे तो rho is equal to R into A by L हो जाएगा. ठीक है. सो रिलेशन रो इज इक्वल टू आर इंटू एल बाय आर इंटू ए बाय एल, तो यूनिट ऑफ आर ओम इंटू ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो ओम मीटर हो जाता है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट. क्लियर है बच्चों? यस सर. Now factors affecting the specific resistance पे क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना ज्योमेट्री पे नहीं डिपेंड करता, मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं डिपेंड करेगा. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बस उस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा. Specific resistance of a substance is its characteristic property. It is different for different substances. Specific resistance of a substance depends on its temperature. Depend किस पे कर रहा है? Temperature पे. It increases with the increase in temperature for metals, but it decreases with increase in temperature for semiconductors.
तो मेटल्स के लिए बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये इंक्रीज करेगा, और जो ये टेम्परेचर डिक्रीज करने पे डिक्रीज करेगा, ठीक है। Now, specific resistance of material of a conductor is constant at a given temperature and it does not depend on the shape and size of the conductor. तो अगर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, और वो इट विल नॉट डिपेंड ऑन द shape and size of the conductor. If a given wire is stretched such that its length gets doubled, then its area of cross section will get halved, since the volume remains changed. तो हमें पता है कि लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर तुमने लेंथ को डबल किया तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नाउ द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज टू 4 times of its previous value, twice because of the increase in length and then twice because of the decrease in the area of cross section. तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसको हम लोग एक क्वेश्चन पे ये करते हैं कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक कंडक्टर है लेंथ एल का, इसको हम लोग स्ट्रेच करके 2l का बना देते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेच करने से मान लो लेंथ एल है, एरिया ए, स्ट्रेच किया तो लेंथ 2l हो गया, एरिया क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही रहना है, 2l इंटू a/2 इज सेम एज l इंटू ए। तो लेंथ को जब हम स्ट्रेच करके डबल कर देते हैं एरिया हाफ हो जाता है, ठीक है। सो अब फर्स्ट केस की बात करें, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, फर्स्ट केस की बात करें रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। सेकेंड केस की बात करें, इसको R1 मान लेते हैं। सेकेंड केस की बात करें R2 इज इक्वल टू रो इंटू 2l बाय a/2। ये जो a/2 है ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 times रो एल बाय ए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 4 times हो गया, दैट्स व्हाट इज रिटन हियर, ठीक है। सो if its length gets double then its area of cross section will get half, and the this increases 4 times. Now the resistance will increase 4 times of the previous value, ठीक है। अब इसी का एक और आता है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये लेट से लेंथ एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए का है, तो अगर इसको हम लोग मिडिल से फोल्ड करके डबल कर दें, लेंथ l/2 हो गया, एरिया 2a हो गया। सो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R है, दिस इज रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो l/2 बाय 2a, सो दिस इज रो एल बाय 4a, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनिशियल रेजिस्टेंस का 1/4 हो गया। सो R डैश इज इक्वल टू R/4 हो जाएगा, यहाँ 4 टाइम्स हो जा रहा था, ठीक है। और यहाँ 1/4 हो जा रहा है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Now conductivity, the reciprocal of specific resistance is known as conductivity, ठीक है। तो जो रेजिस्टिविटी है उसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज कंडक्टिविटी। सो रेसिप्रोकल ऑफ specific resistance is known as conductivity. So it is represented by the symbol sigma. Thus, conductivity rho is equal to, conductivity यहाँ पे सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, दैट इज रो को R इंटू a/L करते हैं,
तो L बाय R इंटू ए कर देंगे। सो SI यूनिट अगर देखेंगे, लेंथ का मीटर है, मीटर बाय मीटर स्क्वायर इंटू ओम, तो 1 बाय ओम मीटर, तो ओम इनवर्स मीटर 1 मीटर इनवर्स, ये हमारा SI यूनिट हो जाएगा। ठीक है। नाउ चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, तो अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग अलग अलग तरह का वायर चूज करते हैं, और उसको चूज करने समय क्या सोच कर, क्या कंसिडर करके हम लोग चॉइस ऑफ मटेरियल करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। द वायर्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड फॉर पावर ट्रांसमिशन, है ना। तो अगर हम लोग को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और पावर ट्रांसमिशन के लिए चाहिए, तो वहां पे रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो कम से कम रेजिस्टेंस होगा उतना बेटर रहेगा। So such wires should possess the least possible resistance, hence they are made of materials such as copper or aluminum. अगर हम लोग को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए चाहिए और पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो कोई भी एनर्जी लॉस होना नहीं चाहिए, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी लॉस इन इलेक्ट्रिक करंट, और मैक्सिमम करंट तुमको फ्लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस लीस्ट होना चाहिए। सो लीस्ट रेजिस्टेंस होगा तभी मैक्सिमम करंट होगा। उस केस में जो मटेरियल हम लोग यूज करेंगे वो कॉपर और एल्युमिनियम हम लोग यूज करेंगे वायर के लिए। नाउ रेजिस्टेंस वायर्स और स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स सच एज वायर आर ऑफ हाई रेजिस्टेंस and their resistance must not change due to change in temperature. They are made from alloys such as manganese, constantan, etc., for which the specific resistance is high and the effect of change in temperature on their resistance is negligible. ठीक है। सो अब अगर हम लोग को रेजिस्टेंस के लिए देखना है कि अगर रेजिस्टेंस के लिए वायर को चूज करना है, तो वो कौन सा वायर चूज करेंगे जिसमें कि रेजिस्टेंस हाई हो, वही वायर को चूज करेंगे हम लोग। तो जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस हाई है, वो मैंगनीज है, कॉन्स्टेंटाइन है। ठीक है, दीज आर द टू मटेरियल्स by which the resistance should be made for the resistance wire, फॉर द यूज इन रेजिस्टेंस वायर। तीसरा यूज है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कि भाई, पहला फ्यूज जो है मेल्ट आराम से हो जाना चाहिए, दूसरा, ठीक है, दूसरा हीट अप नहीं होना चाहिए। सो इट इज मेड फ्रॉम एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो एंड इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज मोर देन द कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जो उसका जो रेजिस्टेंस है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, कॉपर और एल्यूमिनियम से ज़्यादा होना चाहिए, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, तुरंत मेल्ट कर जाए, सो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ शॉर्ट एंड थिन फ्यूज वायर इज मोर देन दैट ऑफ कनेक्टिंग वायर। ठीक है, तो कनेक्टिंग वायर से ज़्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना, कॉपर और एल्यूमिनियम से, और वो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए फ्यूज वायर की। तो जो हम लोग यूज करते हैं मटेरियल, क्या यूज करते हैं, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। सो द मटेरियल विच इज यूज्ड एज अ फ्यूज वायर इज alloy of lead and tin. Property which helps us to choose this is that resistance, low melting point, and specific resistance is more. Now the filament of an electric bulb. सो फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए जिसमें कि रेजिस्टेंस हाई हो और वो ग्लो करने लगे तुरंत, है ना। सो वायर इज यूज बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, और हम लोग इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए अदरवाइज, और इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। तो फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग टंगस्टन यूज करते हैं। ठीक है, और टंगस्टन जो चॉइस है, वो क्यों हम लोग चॉइस रखते हैं टंगस्टन का, कि इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, right? Tungsten has a high melting point and it does not oxidizes, मतलब burn out नहीं करेगा। अब फिफ्थ वाला देखो, the heating element in appliances such as toasters, oven, etc. So ये जो heating appliances, heating elements हैं, ये इन सारे चीजों का, so these heating elements are made up of nichrome wires। ठीक है, so nichrome जो हम लोग यूज करते हैं,
Nichrome wire is used because the specific resistance of nichrome is high and its resistance increases a great extent with the increase in temperature. अब सुपर कंडक्टर्स क्या है? सुपर कंडक्टर इज अ सब्सटेंस ऑफ जीरो और इनफाइनाइट कंडक्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस और इनफाइनाइट कंडक्टेंस कर लो. सो रेजिस्टेंस जीरो होना का मतलब कंडक्टेंस इनफाइनाइट होना एट ए वेरी लो टेम्परेचर. Mercury below 4.2 Kelvin, lead below 7.25 Kelvin, and niobium below 9.2 Kelvin are the semiconductors. These are example of semiconductors. Sorry, superconductors. I'm sorry. Clear है बच्चों? Yes, sir. तो ये तो थ्योरी पार्ट हो गया. ये थ्योरी पार्ट मैं शेयर भी कर लूंगा तुम लोगों से. इसका न्यूमेरिकल अगर हम देखें, ओम्स लॉ पे बेस्ड बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं ये. So calculate the potential difference across a conductor of resistance 5 ohm. R का वैल्यू 5 ohm दिया हुआ है to pass a current of 1.5 ampere. So resistance R is equal to 5 ohm. Current I is equal to 15 ampere. Potential difference V निकालना है. V is equal to IR होता है. So current means IR means 1.5 है, sorry. 1.5 into R is 5. So this is 7.5 volts. फोर्थ देखो कि द इलेक्ट्रिक गैजेट ड्रॉज अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर. तो ये जो गैजेट है इसका जो करंट है दिस इज 200 मिली एम्पियर, मीन्स 200 into 10 to the power minus 3 ampere. So 0.2 ampere होगा. ठीक है. From a battery of 12 volt. ठीक है. V is equal to 12 volt. Find its resistance. So R is equal to V by I. 12 by 0.2. So this is 60 ohm. फिफ्थ वाला देखें अगर, a torch bulb when cooled has a resistance of 1 ohm, it draws a current of 300 milliampere when glowing from a source of potential difference 3 volt. Calculate the resistance of the bulb when glowing and explain the reason for the difference in resistance. तो resistance जब glow कर रहा होगा तो V by I करेंगे 3 volt by 300 milliampere, मतलब 0.3 ampere हो गया. So this is equal to 10 ohm. तो पहले जब ठंडा था तो रेजिस्टेंस 1 ओम था, हॉट हुआ तो रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया. रीजन क्या है? टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है. सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. तो इसीलिए ये जो गर्म होने के बाद ये इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया. क्लियर है बच्चों? सिक्स्थ देखोगे, calculate the resistance of 1 kilometer long copper wire of radius 1 mm. Specific resistance दे रखा है. तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है, वैल्यूज पुट करो. रो का वैल्यू 1.72 10 टू द पावर माइनस 8. लेंथ L का वैल्यू 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब
पाई आर स्क्वायर हो गया 1.72 10 to the power -8 into length 1000 by area pi r square. So 3.14 into radius 1 mm, 1 into 10 to the power -3 also. So this is 1.72, sorry, into so 1.72 divided by 3.1, 0.547, 5.47. So 5.47 आता है approximately. Clear है बच्चों? Yes, sir. Seventh वाला देखो, when a potential difference of 2 volt is applied across the ends of a wire. So V is equal to 2 volt is applied across the ends of a wire 5 meter in length. So length of the wire is 5 meter. A current of 1 ampere flows through it. ठीक है, current is equal to 1 ampere. Resistance per unit length of the wire. तो पहले तो R निकालोगे, V by I निकलेगा, 2 by 1, 2 ओम हो गया, राइट. और resistance per unit length मतलब R by L. So this is 2 by 5. So this is 0.4. ठीक है, 0.4 ohm per meter. ठीक है. सेकेंड कह रहा है आपको resistance of 2 meter length of the wire. So R dash is equal to R by L into new length L dash. So 0.4 into length L dash. So resistance per unit length को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, so 0.8 ohm हो गया. थर्ड वाला कह रहा है the resistance across the ends of the wire if it is doubled on itself. तो double on itself, ठीक है. तो मान लो पहले लेंथ L था, अब L/2 हो गया, एरिया डबल हो गया, ठीक है. सो अब अगर हम लोग को नया रेजिस्टेंस निकालना होगा तो रेजिस्टेंस रो इंटू L/2 बाय एरिया 2 है. सो दिस इज रो L/4 है, ठीक है. सो रो L/4 है, रो L/A हमें पता है, हम लोगों ने निकाल रखा है 2. सो 2/4 दैट इज 0.5 ओम. क्लियर बच्चों? Yes, sir. तो इसके सारे न्यूमेरिकल्स कर लेना, और एक्सरसाइज में 34 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में बांट लो, 17 ठीक है. 17 क्वेश्चंस करने और 17 उसके अगले दिन करने, 17 क्वेश्चन करना, ठीक है. देखने भी है ना.
फिर हमें आपको सेंड भी करने हैं। जी हाँ जी, सब चीज भेजना है, बिना भेजे मतलब कुछ नहीं किया।